Hello everyone, welcome to all of you. My name is Shweta Sinha and today we are taking a very important and very interesting topic, electric motor. Okay, so students, we all know about electric motor. We use electric motor in so many electrical equipments. Mainly if you talk about fan, okay, actually there are so many equipments in which we use electric motor, but for a basic example I can take fan, cooler, okay, your ceiling fan, your table fan. In every fan we want a rotator which can keep moving on the wings. Okay, we want this thing so that our fan if you talk about a table fan, so we want a rotator which can keep moving these wings. Okay, so we use electric motor because electric motor works as rotator. Okay, so in today's lecture we are going to see what is the functioning of electric motor, how does electric motor works. Okay, so to understand this, first we want concept behind it, or you can say on which principle it does work. Okay, so concept is given by Ampere's experiment result. Okay, there was a scientist Ampere's and he did an experiment after Oersteds and Faraday. First in Oersteds and then in Faraday's experiments. What we have learned in Oersted's experiment, we have seen that electric field to magnetic field generation is possible. Okay, and in Faraday's experiment we have seen magnetic field to electric field generation is possible. Okay, now Ampere's third one, Ampere's experiment. What he observed, like in Oersted there was magnetic field was absent, but finally there is a production of magnetic field. In Faraday's experiment electric field was absent, but because of motion of magnet electric field produced. Then Ampere thought, what will happen if electric field and magnetic field both will be present simultaneously? So try to understand in his experiment what he did. He used magnetic field as well as electric field. Okay, so he use a magnet, you can say he just took a magnetic field. Okay, so this is a U-shaped magnet and you can say it is also known as horseshoe magnet. Okay, and what he did, this is the magnetic field, he passes the electric field through this. Okay, like through a conducting wire which is connected to a cell, so that current is flowing through this conducting wire. Now this current is passing through this magnetic field. So he observed the result. What will happen if magnetic field as well as electric field is present here? So what he observed that this conducting wire is experiencing a kind of force. ओके, कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो, तो उस पर उन्होंने क्या रिजल्ट ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, एक काइंड ऑफ फोर्स लग रहा है. ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है, इसके बीच में ये मैंने ये रख दिया ऐसे. ठीक है, ये वायर है, इसको मैंने से पास करवा दिया विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. ओके, और सेल. ओके, इट इज एक्चुअली अ सेल. सो अब इस वायर पे एक तरह का फोर्स लग रहा था. अब उसी फोर्स को का यूज़ करके हम मतलब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक मोटर में. कि फोर्स कैसा लग रहा था कि भाई कभी वायर आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. तो ये जो चीज़ थी वो इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही थी. फोर्स तो लग रहा था, ये क्लियर हुआ. यही एम्पियर का रिजल्ट था कि व्हेन अ current carrying conductor passes through a magnetic field.
magnetic field, there is a force, or you can say conductor experiences a kind of force, okay. This is the result of Ampere's experiment, okay. Later this force has also defined as Lorentz force, okay. बट जब तक एम्पियर ने किया था तब तक इसे कोई नाम नहीं मिला था, बस ये था कि हाँ ठीक है उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से अब कंडक्टर है, मान लो इस पे कंडक्टर ऐसे जा रहा है, इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो ये कंडक्टर से पीछे की तरफ जाएगा, फोर्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो किसी भी तरह इस कंडक्टर में एक डिफ्लेक्शन मिला उनको, इस वजह से उन्होंने बता दिया कि इस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। नाउ दिस इज द एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट। Let's see how do we use this concept in electric motor. Okay students, so we ready for this? Okay, to understand this in electric motor, हम पहले यही देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है ये, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होगा, ये इतना तो हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया इस चीज़ का कि भाई उसमें भी कुछ ऐसा होता होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता होगा और एक उसके इनसाइड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर होता होगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका। तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और इसके बीच में एक कंडक्टर होता है, ठीक है। एंड कंडक्टर इज ए रेक्टेंगुलर शेप कंडक्टर लाइक दिस। अब वायर है, वायर को तो चाहे आप जैसी शेप दे लो, ठीक है। इस तरह से वो होता है, ऐसे कर लो। तो इस तरह का एक कंडक्टर होता है। अब इसका करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब ये एक बैटरी से भी, सेल से भी कनेक्ट होता है, सेल और बैटरी, ठीक है। तो अगर ये सेल और बैटरी से कनेक्ट है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, इट इज़ ABCD, ओके। अब ABCD है ना, और इसके ये दो टर्मिनल हैं, ये मान लो ये प्लस से कनेक्टेड है और ये माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब हमारे को ये नहीं पता कि वो फोर्स किस तरह लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है मोटर की, उसमें भी एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसे आप बोल सकते हो आर्मेचर। आर्मेचर इज नथिंग बट अ कंडक्टिंग कॉइल, ओके। इसको हमने कॉइल की शेप दे दी है। तो इस तरह से एक रफ स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हो मोटर के इनसाइड की। अब देखो हम ये समझते हैं कि ओके करंट फ्लो हो रहा है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी चेक द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, ओके। कि उसमें फोर्स तो लग रहा है लेकिन किस तरह से फोर्स लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का इस आर्मेचर पे क्या इफेक्ट होगा, ओके। सो इसके लिए भी अब हमारे पास एक दूसरा रूल है कि उस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे हम चेक करें। तो इसके लिए एक रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ force acting on current carrying conductor inside the magnetic field, inside the magnetic field. Okay, so there was a rule to just to determine the direction of force acting on the current carrying conductor, और इस केस में आप बोल सकते हो कि आर्मेचर पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो
कि फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे देखें, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड रूल हमारे को समझना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इट इज लाइक इफ वी सेट आर लेफ्ट हैंड, आपको नाम से इसके जो टॉपिक का नेम है उससे पता चल रहा होगा कि इस रूल में हम अपने लेफ्ट हैंड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि फ्लेमिंग ने ये बताया कि अगर एक जस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस दिया कि आप किस तरह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट है, ठीक है, एंड तीसरी चीज है फोर्स। सो यू कैन से फोर्स, magnetic field, okay, that is denoted by B, force, magnetic field, and third है current। okay, तो इन तीनों चीज के बीच में उन्होंने अपना एक रूल बनाया जो इन तीनों चीजों को रिलेट करता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और वो रूल था लेफ्ट हैंड। इसमें हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। एंड ही टोल्ड दैट इफ यू सेट योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, लाइक लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। Yes, if we draw your if you set your left hand in such a way that thumb, index finger and middle finger, this is thumb, index finger, okay, and this is middle finger, are perpendicular to each other. Okay, in this case they are perpendicular to each other. If thumb is going upward, then middle finger, index finger is going along this direction, and this is, so you can say 3 dimension, they are showing 3 dimension, तीनों ही एक अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन तीनों डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। yes, if you are getting the diagram, yes, I am not good at diagram but I think it is enough to understand। okay, so अब उन्होंने क्या बोला कि इस तरह से आपको अपने लेफ्ट हैंड को सेट करना है। अब क्या होगा इससे, तो अब इसमें एक उन्होंने तरीका बताया कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फादर, मदर, चाइल्ड, ये उन्होंने नहीं बताया, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि इसको ट्रिक है जस्ट इसको लर्न करने की, फादर, मदर, चाइल्ड। इफ योर इंडेक्स फिंगर इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ओके, एंड योर मिडिल फिंगर इज शोइंग करंट डायरेक्शन, current direction, then your thumb will show the force acting on direction of force, okay, direction of, yes, force direction। hope this is clear to you। how do we identify, for in this condition we will just set our left hand in such a way that our index finger should show the direction of magnetic field, your middle finger should show the direction of current direction, then thumb will give the direction of force। now let's try to implement this rule in this motor structure। okay, how do we identify। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अपने इलेक्ट्रिक मोटर पे अप्लाई करके देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन हमारे को पता है कि उसमें भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और उसके इनसाइड एक हमने आर्मेचर रखा है। आर्मेचर इज नथिंग बट कंडक्टिंग कॉइल, ओके, एंड दैट कॉइल इज कनेक्टेड, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मीन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। ओके, अब इतना तो हमारे पास क्लियर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट भी प्रेजेंट है। नाउ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब उस फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। यस, इसकी नेमिंग कर देती हूँ ABCD। सो स्टूडेंट्स, we can see that current is flowing like this. That means for AB and CD directions are opposite. For AB current direction is upward, for CD current direction is downward. That means magnetic field, because of magnetic field, force acting on the current carrying conductor is also, students, different for AB section, for CD section। okay, so तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी देख लेते हैं कि ए बी पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। ठीक है, सो जस्ट अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू अंडरस्टैंड। आप इसको थोड़ा सा इसका इजी करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था लर्न करने का तरीका, थंब जो है वो फोर्स को बताता है, F फॉर फादर,
ओके, तो फोर्स को आप ऐसे समझ लो कि थंब की डायरेक्शन जो है, दिस इज फादर, इंडेक्स इज मदर, index finger which is equal to magnetic field, okay, and child, C for current. So it is just to remember, if you can remember like this, force, magnetic field, current, that is also okay. Okay, so for AB, if we see direction of current is upward, which finger shows direction of current? Middle finger. आपको क्या कर देना है, इसको अपवर्ड कर देना है, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉर्थ टू साउथ ऑलवेज, सो it is the north to south direction of current. Now you see the direction of thumb, it is going inward, okay, into the plane. So you can see for this AB section, force is inward, okay. And if we talk about CD section, just check, current is opposite, means current is flowing downward, so middle finger is downward, and this finger, magnetic field, north to south. Now this thumb orientation, it is outward, okay, out of the plane. So what is the direction of force? Outward, okay. So CD section पे कैसा फोर्स लगा स्टूडेंट्स? आउटवर्ड. तो आप ऐसे समझ लो कि AB पे तो इनवर्ड फोर्स लग रहा है, CD पे आउटवर्ड लग रहा है. तो इसका मतलब CD तो कहीं बाहर आ रहा होगा ऐसे, और AB क्या जा रहा होगा? अंदर की तरफ. इसको हम ट्राई करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने का. जैसे मान लो छोटा, मैंने बस एक, ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर नहीं है बट इट्स ओके, इट विल वर्क. ये जैसे कि मान लो ये कॉइल है आपकी, ये AB सेक्शन हो गया और ये CD सेक्शन हो गया. तो अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? AB पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो यहाँ के लिए इनवर्ड क्या है? ये वाली, ठीक है, इस पे इनवर्ड लग रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा AB सेक्शन, एंड CD पे आउटवर्ड. तो ये कुछ इस तरह से हो गया ऐसे कि AB सेक्शन तो नीचे गया और CD क्या आ गया? ऊपर की तरफ आ गया. तो आप ये बोल सकते हो कि हाफ रोटेशन के बाद क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स? ये कुछ इस तरह से टर्न हो गया होगा पूरा ऐसे. तो अब क्या होगा कि ये प्लस मीन्स ये ब्रांच तो आपके किस तरफ चली गई? आप ऐसे समझ लो कि जैसे थोड़ा सा टर्न हुआ तो अब ये वाली ब्रांच तो इस तरफ शिफ्ट हो गई एंड CD वाली ब्रांच इस तरफ शिफ्ट हो गई. अब क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स? जैसे मैं इसका रफ आइडिया आपको दूं, तो ये हो गया आपका प्लस. अब क्या हो गया? ये प्लस, ये माइनस, ये हो गया AB और ये हो गया CD. समझ रहे हो? अभी भी करंट की डायरेक्शन AB में तो अपवर्ड ही है, CD में क्या है? डाउनवर्ड है ना. तो अब क्या होगा? अब देखो आप हाफ रोटेशन के बाद क्या सीन दिख रहा होगा आपको कि AB पे करंट क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, ऐसे. एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी है ही इस तरफ. अब इसमें क्या हो रहा है? फोर्स इनवर्ड. तो अभी भी AB पे फोर्स क्या लग रहा है? इनवर्ड. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि हाफ में तो ये ऐसे आया, ठीक है, अब और हाफ में क्या हो गया? अब जब AB यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस तरफ पहुँच गया AB, तो अब ये वापस से इन्वर्ट. तो आपने कभी देखा है कि आपका फैन कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा हो, हाफ ऐसे हाफ ऐसे? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है. सो अगर हम सिर्फ इसको यहीं तक छोड़ दें तो ये वर्क नहीं करेगा. ये ऐसा आपके इलेक्ट्रिक मोटर में होता नहीं है. इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेशन होता है, कंप्लीट रोटेशन होता है, हाफ रोटेशन नहीं होता. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमारे को किसी भी तरह हमें ये चाहिए कि दिस पॉजिटिव टर्मिनल कम टू द CD टर्मिनल आफ्टर हाफ रोटेशन एंड नेगेटिव टर्मिनल गोज टू द AB. ओके, मीन्स एक्सचेंज ऑफ टर्मिनल वी वांट. अदरवाइज क्या होगा? अगर टर्मिनल एक्सचेंज नहीं करोगे आप स्टूडेंट्स, तो होगा क्या? हाफ तो आपका सही जाएगा ऐसे, फिर हाफ वापस ऐसे. तो इस तरह से आपका कोई चीज़, कोई फैन वगैरह इस तरह से तो मूव करता नहीं है, ठीक है. तो अब इसको चेंज करने के लिए, इस टर्मिनल को चेंज करने के लिए कि भाई हाफ रोटेशन के बाद जो प्लस है वो CD की तरफ चला जाए, माइनस AB की तरफ आ जाए, वी यूज़ अ रिंग स्प्लिटर. ओके, रिंग स्प्लिटर. अब रिंग स्प्लिटर की फंक्शनिंग कुछ ऐसे होती है कि जैसे ये हाफ रोटेट करेगा तो स्प्लिटर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है. ये जस्ट क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव, ये वाला जो डिस्क, ये समझ लो कि ये जो रिंग थी, स्प्लिटर इसलिए बोलते हैं रिंग के शेप में होता है, ठीक है, रिंग स्प्लिटर. ये क्या करेगा? हर हाफ रोटेशन के बाद ये जस्ट टर्मिनल को एक्सचेंज कर देगा. प्लस उधर चला जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है. अब वो कंडीशन पॉसिबल होगी कि हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा? CD में करंट अपवर्ड जा रहा होगा एंड AB में करंट डाउनवर्ड. तो जो पहले आपका यहाँ तक आके रुक गया था और वो वापस ऐसे जा रहा था, अब वो वापस ऐसे ना जाके अब वो
और नीचे जाएगा। अब क्या होगा, इस वाली ब्रांच पे नीचे की तरफ लगेगा फोर्स एंड इधर वाली ब्रांच पे ऊपर की तरफ, तो ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करवाएगा। इसलिए हम रिंग स्प्लिटर यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि वो हाफ रोटेशन के बाद क्या करे स्टूडेंट्स, टर्मिनल को एक्सचेंज कर दे। ओके, तो इस तरह से आपका एक रोटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस तरह के रोटेशन हम और चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रहे, तो हम ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ रोटेशन चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, ब्रश क्या काम करता है, वो इस रिंग स्प्लिटर को ही बार बार एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से मोटर का कंस्ट्रक्शन था और किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, होप आप लोग को समझ में आया होगा कि भाई ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में एक हम क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग कॉइल्स रखते हैं। yes, it is not necessary that we are using a single coil. Okay, if you check real motor inside, okay, so you will find that there are number of coils. इसका मतलब कि सिर्फ एक कॉइल ऐसे नहीं होती, हो सकता है यहाँ पे दूसरी कॉइल भी हो, और वो ये भी पॉसिबल है कि वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस। फिर ऐसे और भी बहुत सारी कॉइल हो, सारी इसी तरह की शेप में हो। ठीक है, इस तरह से तो ऐसे बहुत सारी कॉइल्स होती हैं एक्चुअल मोटर के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाने से हमारे को क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, अच्छा रोटेशन मिल रहा है, ताकि वो और फास्ट मूव करे। ठीक है, और तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छा एफिशिएंट मोटर अगर हमारे को चाहिए, तो उसके लिए हम उसे दो तरह से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, change the number of rotation as you increase the number of these coils, as you increase the number of coils, number of rotations will also increase। और आप ऐसे बोल सकते हो एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ वो मूव करेगा, तो रोटेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप ये जो बैटरी यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे कोई बैटरी या सेल और मतलब जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही असर क्या करेंगे, मोटर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और मोटर का स्ट्रॉन्ग होना मतलब आपका इक्विपमेंट बहुत अच्छा वर्क करेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो बेसिक पार्ट जो इसका यही है कि एक आर्मेचर होता है, दिस इज द आर्मेचर or conducting coil, you can say one magnetic field is present there. Then ring splitter what does student, after half rotation it just exchange the terminal so that a complete rotation is possible. Okay, without ring splitter you cannot change this terminal. इससे क्या होगा, अगर जब हमने रिंग स्प्लिटर नहीं लगाया था, तो हमारे को पता है कि AB के साथ पॉजिटिव ही रहेगा, CD के साथ नेगेटिव ही, तो उस तरह से हाफ रोटेशन दोनों डायरेक्शन में हो रहे थे। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज अनडिजायरेबल थिंग। सो हमारे को टर्मिनल चेंज करने के लिए रिंग स्प्लिटर लगाना पड़ा, एंड रिंग स्प्लिटर को क्या करना है, हमारे को बार बार ये अपने आप ही चेंज होता रहा, हम थोड़ी चेंज करने बैठेंगे। ठीक है, तो इस रिंग स्प्लिटर की वर्किंग अपने आप ही होती रहे, ये एवरी हाफ रोटेशन अपने आप के टर्मिनल्स को क्या करे, एक्सचेंज कर दे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ब्रश। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो थैंक यू सो मच इफ you have got this lecture. Okay.